visible. Yeah. So this is our JSP page, right? So wherever I want to write HTML code, I can write it outside the scriptlet. But for a HTML code, I need a scriptlet. Example of that was over here. So whatever HTML code is there is outside the scriptlet, and whatever Java code is there is written inside the scriptlet, right? So all this was Java code, execution of query. So now what they have done, they have made small tags. What is a tag? What is table? So these tags are outside the scriptlet. So JSP has also made its tags, which can be written where inside or outside the scriptlet. Tags. Tags go where? Inside the scriptlet or outside the scriptlet? Outside the scriptlet. So you don't need a scriptlet area to write Java code now. So JSP has made its own tags. Now, for example, for database connectivity, किसी को होस्ट बनाया नहीं क्या मैंने? Aditya, I'll make you the co-host. Please add people as they join so that they won't disturb me. Okay? So here, so as we have a HTML tag, JSP has made its own tag. They are in the JSTL. They are in the JSP standard tag library. Okay, so we can use JSTL tag. So we can write them outside the scriptlet. For example, if you want to do database connectivity. Okay, so if I show you over here, if you want to do database connectivity, see over here. Is my screen visible? So earlier, how we would do database connectivity, right? Like this, try in the scriptlet, write the try block, right? Now what you can do is JSP has given you a tag that is called as JSTL. That is called as what? And you have many tags of JSTL. You have simple programming fundamental tags also. Like if you want to do a if condition, do a switch case. For that also we have simple JSTL tags. So now let's come over here. So this is a JSTL tag to create a database connection. It starts with the prefix SQL. So first we have to add that tag to our file at the top. So you can go to, you can search for JSP, okay, or you can just search for JSP standard tag library. Let's try to search that. Okay, JSP standard tag library. Okay, I come to tutorial point. Now, for that, first you have to add a jar of JSTL to your application. So you have to add this jar. You see this JSTL. I'll share this with you all. Copy this jar and add it where? In your lib folder. In your lib folder where you are keeping your drivers. Okay. Add it over here. First step should be to add the. So now you have JSTL tags for database, JSTL tags for core programming fundamentals. So whichever tags you want to see core tag, formatting tag, SQL tag, XML. So which one you want to use? You have to use that. So if you want to use core tags, like if you want to just print a statement, okay, like how you had this expression. What was expression doing? Small amount of Java code, right? So you can use what instead of that? Prefix C and what out.
So this is your core tag. So if you want to copy that, take this tag library. So copy this and place it where? See, here I was doing expression tag, okay, right? So now what I'll do is, error कैसे आ गया? एग्जीक्यूटेबल कोड था ना ये? This code is executing, right? So what error is this showing over here? यहाँ पर क्या इशू है? रोल नंबर इक्वल्स टू, हमने रोल नंबर पास किया, ये तो काम कर भी रहा था ना. Okay, so if I want to add any of my JSTL tag libraries first, add the JSTL file to the lib folder, then go at the top and @taglib, okay, @page, @include, and now @taglib. What will be the prefix for each of your tags? What will be the prefix for each of the tags? What is there before the colon? What is there before the colon? C colon, C colon, C colon, C colon, C. So for if condition, C if. Okay. For your switch case, C choose. Okay, like this. For each, C for each. Passing some parameters for a passing parameters to a prepared statement, C param. Redirect. Remember send redirect. So C redirect. So all these are in which 4 tags from the tag library. So if you want to use any of these tags, you have to add what? At the top, you can change the prefix if you want to. So if you change the prefix from C to ITP, now what will I do? ITP colon if, ITP colon choose. Okay, so let's keep it C. And they're coming from where? They're coming from these 4 tags. Okay, from this URL. So now, going forward, if you want to inject a, now what was this? Small amount of Java code inside a HTML tag. So you can copy this, and now we'll try to do this using the C. So let's try to do the same task with the help of cout. So how to do that? You just have to write like this. C, take this and write the value. Cout, and have to use the value over here. You have to use the value attribute of it. मैंने भी किया होगा डॉक्यूमेंट के अंदर से. दिख रहा है cout वैल्यू इक्वल्स टू, तो ये वाला ले लेते हैं, ये कॉपी करते हैं और कहाँ से रिप्लेस कर देंगे इसको, ये वाले पोर्शन, राइट. किससे रिप्लेस कर देंगे? cout. और वैल्यू कहाँ से आएगा उसका? ये वैल्यू है ना. So now you don't require your scriptlets. Let's save this. This was executing fine. Let's try this. Showing an error over now. It's not showing any error over here. Let's start. What was the landing page for this? All students. Let's clear the console, everything. All students was a landing page for this, I remember.
ये आ गया, दोनों डिलीट आ गए। ये डिलीट कौन से बटन से है? स्क्रिप्टलेट से। और ये GHTL का टैग यूज करके सी आउट। इससे ट्राई करते डिलीट करना, जॉर्ज को सिलेक्ट किया, जॉर्ज डिलीट हो गया। इससे डिलीट करते टेस्ट को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर वो क्या इशू बता रहा है, लाइन नंबर 12 पे डिलीट स्टूडेंट। यहाँ पर आएगा फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, what is JSPL tag? Let's check the console as to what error is showing over here. वो बता रहा है with root cause for input string number format exception. ओके, शायद इसको वो यहाँ से डेटा बराबर नहीं जा रहा। यहाँ से जो पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो पैरामीटर सही से पास नहीं हुआ। Let's ask ChatGPT as to what is the solution for this. Let's go to paste this code and check as to what it recommends us. We've added the, you have for reading students and error handling for SQL. Okay. Update JSPL code with ये क्या होगा, ये क्या होगा, देखो यहाँ पर टैग लिब प्रीफिक्स CURI कर दिए। What syntactical mistake you are making? We are trying to check that. See, it is saying like this: equals to rs dot get int e number. Do not pass it the square brackets. Okay. So it is just saying, okay, but ये तो अपना एक्सप्रेशन टैग से, ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए। टैग लिब तो प्रीफिक्स हुआ है, और वापस इसमें गेट इंट की नंबर कर दिया। So see what you can do is, delete student roll number। हाँ वही तो अपन ने किए, देखो JSP delete student dot JSP roll number equals to
ये पूरा उठा रहा हूँ मैं, और उसके सिंगल कोट तक पूरा जा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क से उठाता हूँ, क्वेश्चन मार्क से उठा के पूरे सिंगल कोट तक उठा रहा हूँ। ओके, लेट्स चेक दिस आउट। क्वेश्चन मार्क से पूरा उठा रहा हूँ मैं यहाँ से। ओके, so see out value rs dot get int of e number. Now if I save this, now this is the only button I have, right? I have removed the button of expression tag. Now let's come back over here, and what was the landing page? All students आ गया, click on delete test, delete कर रहा है, फिर इंटीजर पास नहीं करना है, फिर ये प्रॉब्लम वहाँ आ रहा है। इसको जो रिक्वेस्ट रोल नंबर है ना, वो नहीं मिल रहा है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है। यहाँ से जो पास कर रहा है, तो ये आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज आता है, इसको एक्सप्रेशन में यूज मत करो, इसका यूसेज देखेंगे बाद में कहाँ होता है। तो यहाँ पर यही यूज करें, बट अगर आपको कुछ डिस्प्ले करना है वेब पेज के ऊपर, तो जैसे ये हेडर 2 बार आ रहा है क्या नजर, हेडर 2 बार आ रहा है क्या डिस्प्ले में? हाँ देखो 2 बार हेडर आ रहा है। ओके, अब इस हेडर के ऊपर समझो कुछ इसके बाद कुछ अपने को डिस्प्ले करना है, तो फिर हम लोग सी आउट यूज कर सकते हैं। ये तो दिस इज एज गुड एज प्रिंटिंग समथिंग, दिस इज एज गुड एज प्रिंटिंग समथिंग। Okay, here the closing tag. How was the closing tag also? The closing tag का syntax ले लेते हैं, तो syntax का ही इश्यू है, तो सी आउट क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ आपने क्लोज किया था कैसे? हाँ क्लोज तो किया, सी आउट पूरा क्लोज किया। So let me come over here, and at the body we'll try to print something, print some value. Welcome to FST। ठीक है, सेव करता हूँ मैं, और फिर इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो कोई भी आपको आउट डॉट प्रिंट एलएन का काम करने का वो काम कौन करता है? सी आउट वो काम कर देता है। तो आपको, तो अभी ये अगर मुझे लिखना होता तो मैं कैसे लिखता इसको? अगर मुझे आउट डॉट प्रिंट एलएन लिखना होता तो कैसे करता मैं? हाँ, किसमें लिखता उसको? स्क्रिप्टलेट में लिखता है ना। तो अभी उन्होंने टैग्स बना दिए कि आपको स्क्रिप्टलेट की भी आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट टैग्स यूज कर सकते। सही है, ये भी डिस्प्ले करेगा वेलकम, करेक्ट। हेलो, यस मैम, मैं एक मीटिंग में टॉक टू समथिंग। ओके, सो ऐसे ये कोर टैग्स है, किसके टैग्स है ये? तो कोई भी इफ एल्स वो सब काम करने हो तो कोर टैग्स यूज कर सकते हैं। ऐसे आपके पास एसक्यूएल के टैग्स भी है, किसके? तो जो आपको डेटाबेस जेडीबीसी के काम करा के दे सकते हैं।
तो क्या करना पड़ेगा, पहले उस टैग लाइब्रेरी को, पहले JSTL को ऐड कर, JSTL में सारे आ गए, सी फॉर्मेट, SQL। तो अभी देखते हैं SQL क्या कौन से है, कहाँ था वो, इसी में था क्या, ये वाले में था ना, ये वाले में था JSTL, ठीक है। तो ये हो गए JSTL के। अब कोर टैग, नोट्स के लिए ये अच्छा है उदय, तो बता नोट्स सर कुछ पढ़ना मिल जाए बेसिक्स के लिए, तो ये अच्छा है। तो ये ट्यूटोरियल पॉइंट कहाँ गया, इसमें कोई दिख नहीं रहा है। तो जस्ट सर्च फॉर JSTL SQL, जस्ट सर्च फॉर व्हाट, अपने आ जाएगा JSTL SQL टैग, आ गया। गीक फॉर गीक्स ले लो, या फिर उससे अच्छा ये वाला ले लो, ये वाला, या टी पॉइंट। ओके, तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले ये टैग लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। कहाँ पर ऐड करेंगे टैग लाइब्रेरी को, एकदम ऊपर, ठीक है, HTML के भी ऊपर। तो अब मैं SQL का जो प्रीफिक्स देखो, यहाँ पर पहले लिखा है, यहाँ बाद में लिखा है, तो कोई फॉर्मेट नहीं है, आप क्या तो पहले भी लिख सकते हैं। एट्रीब्यूट्स है ना, एट्रीब्यूट्स का कोई फॉर्मेट नहीं होता। जैसे अगर मेरा फॉन्ट टैग है तो मैं कलर पहले लिखूँ, साइज बाद में लिखूँ, और फॉन्ट साइज तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट। तो अब आपका क्या हो गया, आपके इस जार फाइल में से उठा लेगा वो। अभी आपके SQL के सारे प्रीफिक्स किसके होंगे, SQL के टैग किससे प्रीफिक्स होंगे, सारे SQL कीवर्ड से। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 27 से लेके 25 से लेके, या 24 से लेके 33 से क्या कर रहे हैं हम लोग, डेटाबेस कनेक्शन कर रहे हैं और एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना। तो उसके लिए अभी इनके पास एक डायरेक्टली टैग मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली एक कोड को यहाँ से उठा सकते हैं, कट कर दिया। अब क्या करने का, डायरेक्ट इनके पास ये देखो डेटा सोर्स करके एक टैग है, क्या है, डेटा सोर्स, इधर नोट में लिखा है मैंने, ठीक है। दिख रहा है, तो सिर्फ डायरेक्ट बॉडी में गए, SQL का डेटा सोर्स टैग ले लिया। तो हम इसको डिलीट नहीं करते, तो कमेंट कर देते, कमेंट कर दिया। Now to establish database connection, what I will do, I will take the SQL का डेटा सोर्स, ओके। जो होता है ना कनेक्शन वेरिएबल, जो अपना ये होता है ना कनेक्शन वेरिएबल, उसका नाम क्या होगा, वो यहाँ दे दो, ड्राइवर का नाम, URL का नाम, यूजर का नाम, पासवर्ड का नाम। तो अपना क्या था, ड्राइवर, ठीक है, ITP2DB था ना। यूजर नेम रूट और पासवर्ड ब्लैंक, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये, क्या है ये, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो इससे मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। और वेरिएबल क्या रहेगा कनेक्शन का, व्हाट इज द कनेक्शन वेरिएबल नेम, जो इधर है ना वेरिएबल का नाम लिखा है क्या, कौन, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, क्वेरी फायर करनी है। क्वेरी सिलेक्ट है क्या नॉन सिलेक्ट है, जो मैं क्वेरी फायर कर रहा हूँ सिलेक्ट है क्या नॉन सिलेक्ट है। तो सिलेक्ट के लिए फंक्शन क्या था, स्टेटमेंट का फंक्शन क्या था, सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट क्वेरी क्या एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट क्वेरी। तो एग्जीक्यूट साइड में निकाल दो, बचा क्या, क्वेरी। तो अगर सिलेक्ट स्टेटमेंट होगा तो क्या होगा, टैग का नाम क्या होगा, SQL कोलन क्वेरी। और अगर होगा DML स्टेटमेंट नॉन सिलेक्ट तो क्या होगा, SQL कोलन अपडेट, ठीक है। बस वही लॉजिक है। अब यहाँ पर देखो,
दिख रहा है एसक्यूएल कोलन क्वेरी, ठीक है। और अब कौन सी क्वेरी है अपनी, तो ये डेटाबेस का नाम कहाँ से आ रहा है, इस वेरिएबल के नाम से, और वेरिएबल हमेशा आएगा एक्सप्रेशन लैंग्वेज में। किसमें आएगा वेरिएबल, एक्सप्रेशन लैंग्वेज को बोलते हैं, डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज, EL क्या बोलते हैं इसको, इट इज यूजिंग EL। तो एसक्यूएल कोलन क्वेरी मतलब ये जो क्वेरी है वो किस नेचर की है, सिलेक्ट नेचर की है, ठीक है। कौन से कनेक्शन से आ रही है, कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, इस वेरिएबल से, ओके। और ये जो रिटर्न करेगा अभी क्या देगा, जो एग्जीक्यूट क्वेरी है उसके LHS में क्या आता है, RS आता है, तो उस RS का नाम क्या होगा अपने आप दे देगा। तो वेरिएबल अपने आप चलेगा वो रिजल्ट सेट का, आपको सिर्फ नाम देना है। और क्वेरी क्या थी अपनी, ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं, इसको क्लोज करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर क्वेरी लिख दी, अब ये अपने आप एग्जीक्यूट हो गई, RS में आ गया डेटा। आपको जहाँ जहाँ यूज़ करना है आप अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, आपका वेरिएबल RS में आ गया, ठीक है। अब आपको यूज़ करना है उसको, ठीक है। तो एक लगेगी ईच, फॉर ईच लगेगी, फॉर ईच लूप लगेगी, है ना, क्या लगेगी, फॉर ईच लूप लगने वाली है। अब देखो मैं सारे स्क्रिप्टलेट्स निकालते जा रहा हूँ, अब यहाँ पर एक स्क्रिप्टलेट है हमारे पास, है क्या नहीं, ये है ना स्क्रिप्टलेट पूरा, करेक्ट। अगर मैं अभी इसको भी कंट्रोल शिफ्ट कमेंट कर दूँ, कमेंट हो गया, ये होगा, लूप लगेगी ना अभी इधर, क्योंकि टेबल का बन गया, हेड तो बन गया, बॉडी के अंदर लूप लगेगी। तो लूप आप ऐसे लगा सकते हो, सी का फॉर ईच ले लो, क्या ले लो, सी का फॉर ईच का ओपन करो, फॉर ईच को क्लोज करो, सी का फॉर ईच ओपन किया, ठीक है। एक एक एलिमेंट कहाँ से, एक एक एलिमेंट किसमें से, इस RS से किसमें आ जाएगा, फॉर ईच है ना, RS से, RS के एक एक रोज किसमें आ जाएगा, आप जो वेरिएबल लेंगे उसका, और फिर उसका क्या डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग, दिख रहा है सी आउट वैल्यू, ये ऐसा था एक्चुअली ये। तो अभी आपने क्या क्या करना है, टी डॉट, कॉलम के नाम से क्या थे वो, कॉलम के नाम से क्या थे अपने टेबल के, कौन सी था डेटाबेस अपना, क्या था भाई, ITP B2 DB1, EMP, ई नंबर, ई नेम, सैलरी, क्या था, ई नंबर, ई नेम और सैलरी। तो टी डॉट ई नंबर, टी डॉट ई नेम और सैलरी, बस चौथा कॉलम देने की जरूरत नहीं, ये कॉलम नहीं है, और फॉर ईच क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे मैं सारे के सारे स्क्रिप्टलेट्स को निकाल सकता हूँ, और JSP के टैग्स भी यूज कर सकते सबके लिए, कनेक्टिविटी के लिए भी और लूपिंग के लिए भी। लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड एंड चेक इफ इट इज रनिंग फाइन, कोई इशू कर रहा है ये, सिंटैक्स का कोई इशू आएगा तो सॉर्ट आउट कर लेंगे, ओके। ऑल स्टूडेंट्स तो हियर, देखते हैं सब कुछ सही चल रहा है। कंसोल पर सब कुछ फाइन है, आ रहा है ई नंबर और ई नेम, सैलरी क्यों नहीं आया, सैलरी और उसके कॉलम कहाँ से आ रहा है,
आपने इसमें सैलरी है क्या पूरा? आप हम्म, अपने इसमें क्या है? सिर्फ एस ए एल है क्या? आपने इसमें सिर्फ एस ए एल है, ओके। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, ये सेव करते हैं और यहाँ पर सिर्फ रिफ्रेश करने का आके, ओके। तो वही काम कर रहा है। और यहाँ पर लेट से डिलीट बटन डालते थे, तो हाउ वुड वी ऐड द डिलीट बटन ओवर हियर? हमने पहले यहाँ पर डाला था, डिलीट। अब यहाँ पर हमको ये एंड पॉइंट कॉल करना है, राइट? तो ये कैसे कॉल करता है, तो इसमें देखना पड़ेगा अपने, टैग लाइब्रेरीज में कैसे कॉल करते हैं। ये आपने ट्राई तो किया था एक बार, तो यहाँ पर जहाँ था वो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर फिर अपने को करना पड़ेगा ए एच डिलीट आर एन ओ इक्वल्स टू, ये करना पड़ेगा क्या, डॉलर टी डॉट सेल, तो डबल कोट्स में आता है वो, टी डॉट टी नंबर ना, राइट? लेट्स चेक दिस आउट ऑन क्लिक, ओके है ना। और ये क्लोज नहीं किया था, चलो चेक कर लेते हैं। एक टीडी ले लिया, उसमें डिलीट स्टूडेंट जेएसपी कॉल कर रोल नंबर यहाँ से ले लिया, उसको रोल नंबर बोला आपने, जबकि अपने डिलीट कहाँ गया, यहाँ पर क्या चाहिए था, एम्प्लॉय नंबर ना, ये नंबर कर देते हैं। ठीक है, आप कुछ भी वेरिएबल का नाम यू कैन गिव एनीथिंग, यू आर अप टू यू, बट लेट्स कीप, ओके। ई नंबर दे दिया, ओके, ये है वेरिएबल का नाम, सेव कर दिया। लेट्स चेक इफ इट वर्क, ऑल स्टूडेंट जेएसपी किया, ओके, बटन आ गई। बटन को स्टाइल क्यों नहीं आए, स्टाइल क्यों नहीं आए बटन को, वो लिखा है बटन, बटन डेंजर, स्टाइल क्यों नहीं है आए भाई। बटन ऊपर अपन ने इंपोर्ट भी किया है ना पूरा, हाइपरलिंक, ये स्टाइल शीट को इंपोर्ट किया है, राइट? तो इज देयर एनी इशू विद द, इंस्पेक्ट करके देखते हैं, कोई कंसोल पे तो कुछ अप्लाई नहीं करना है ना, कंसोल पे क्यों करना है, कंसोल तो ठीक ठाक काम कर रहा है। टेस्ट को डिलीट करते हैं, मैसेज आ रहा है, ओके। वापस वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, वो इनपुट 58, देखो वो ऐसे जा रहा है, देखो एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डबल कोड आ रहा है, दिख रहा है, एक एक्स्ट्रा डबल कोड आ रहा है उसके आगे भेजते वक्त, तो ये शायद नहीं लगे, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, इसका किधर है फिर, एचरेफ का, देखो ये क्लास का सिंगल कोड ओपन, क्लास का सिंगल कोड क्लोज, ऑन क्लिक सिंगल कोड ओपन, ऑन क्लिक क्लोज, तो उसका किधर है, उसका यहाँ क्लोज होता है क्या, हाँ शायद,
ठीक है, एक बार अपना टेम्पलेट काम कर गया ना, रिफ्रेश हुआ क्या? अपन रिफ्रेश करते जाते इधर, अब आया। ठीक है, कैसी रही? ठीक है, तो वो सिंटैक्टिकल मिस्टेक अपन कर रहे थे, इसके लिए वो भी नहीं ले रहा था, थीसिस भी नहीं ले रहा था। तो अब हम सारा का सारा, पर ये तुम लोग का फिर बैकअप निकल जाएगा, तुम लोग का बैकअप निकल जाएगा। मैं करता हूँ ऑल स्टूडेंट, अपने वहाँ पर है ना, ऑल स्टूडेंट है ना गिट पे, गिट मेरा किधर है? यहाँ पर है बस गिट। ठीक है, तो ये अपना शिवम है, इसमें SRC मेन में, वेब ऐप में, ये अपना कल का ऑल स्टूडेंट था, है ना? सही है, प्रॉपर स्क्रिप्टलेट यूज़ करा हुआ, सही है। तो इसको मैं वापस यहाँ डाल देता हूँ, वेब ऐप्स में राइट क्लिक करके न्यू, और बोलता हूँ JSP फाइल ओल्ड ऑल स्टूडेंट .js। तो ये भी आपको मिल गया। जिसको ट्रेडिशनल वे से करना है उसके लिए ट्रेडिशनल वे का रास्ता भी खुला है, और जिसको मॉडर्न वे से करना है JSTL यूज़ करके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे वो निकाल दूँ। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है वेरिएबल की, है ना, क्योंकि सब अपन ने ऑलरेडी, तो कोड और अपना क्लीन होते जा रहा है, कोड पूरा का पूरा क्लीन होते जा रहा है, ना एक्स्ट्रा कचरा जमा करने की ज़रूरत नहीं। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए SQL का टैग ले लिया, क्वेरी फायर करने के लिए भी SQL का टैग ले लिया। ठीक है, बाकी ये तो HTML का तो टैग आपको मालूम है। वापस इटरेशन के लिए वापस C का टैग ले लिया, इटरेट कर दिया एक एक एलिमेंट, इस RS के एक एक रोज में से इस टी में आता जाएगा, और फिर आप जहाँ से जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, इसका आप जो भी नाम दे सकते हो, इसको जरूरी नहीं कि नाम टी आए। ठीक है, इसका नाम आप दे सकते हो रो, एक एक रो आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा फिर आपको, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर रो लिखना पड़ेगा। ये सिंटैक्स में नहीं आता है ये आप डायरेक्ट यूज करते हो, और निकाल दिया। तो अभी मेरे पास कोई भी स्क्रिप्टलेट नहीं है, तो स्क्रिप्टलेट को रिप्लेस कर दिया उन्होंने खुद के ही टैग से, उसको बोलते हैं JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। इज दैट मेकिंग सेंस? यस, नो? ठीक है, अब मुझे अगर ऐड करना है, ऐड स्टूडेंट करना है, मेरा ऐड स्टूडेंट JSP है ना, तो इसको मैं रीनेम कर दूंगा, नहीं नहीं ये सेव स्टूडेंट ना, इसको मैं रीनेम कर दूंगा, रिफैक्टर रीनेम, और इसको हम बोल देंगे ओल्ड, ओल्ड सेव स्टूडेंट। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे और कर देंगे न्यू सेव एम्प्लॉय। ठीक है, ऐसे ही ओल्ड ऑल स्टूडेंट्स रीनेम न्यू ऑल स्टूडेंट। तो न्यू सेव एम्प्लॉय। अब बताओ क्या क्या चाहिए इसके अंदर? ये 3 वेरिएबल हमको लेने हैं यूजर से। ओके, तो इंटीजर डॉट पारसेंट, तीनों आ गए।
तो वहाँ तक तो ठीक है, यूज़र से इनपुट लेने तक आप स्क्रिप्टलेट यूज़ कर लो, यहाँ तक स्क्रिप्टलेट यूज़ कर लो। तो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट अपने को वहाँ से आता है। अब ये पूरा क्या है, पैरामीटर सेट करना, वो सब पास करना, वो हम कहाँ से कर लेंगे अभी। तो पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड, फिर आपको वैल्यू चाहिए आता है। तो आप कौन सी लगेगी क्वेरी इसके लिए, पहले लगेगी कनेक्शन एस्टैब्लिश, पहले क्या लगेगा, तो वो तो आपने यहाँ पर कर लिया है। आ गया न्यू वाला, so I can copy this code from here and paste it over here, correct? Where is new save online? तो डेटाबेस कनेक्टिविटी का ये कोड तो मिल गया, ठीक है। अभी ये लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उसको एसक्यूएल टैग नहीं मिल रहा है, एसक्यूएल टैग नहीं मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ऊपर से ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए। एक तो वो जार फाइल को लिब में डाल दो, दूसरा ये टैग लाइन देखो, जैसे मैं ये ऐड कर दूंगा ये एरर निकल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। अब क्या करना है, क्वेरी। तो इसके लिए क्या होगा बोलो, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था एसक्यूएल कोलन क्वेरी, क्या था, क्योंकि वो था एग्जीक्यूट क्वेरी ना। अब ये इंसर्ट स्टेटमेंट है, तो उसके लिए क्या होगा, एग्जीक्यूट की जगह पे आ गया एसक्यूएल कोलन ना, तो एग्जीक्यूट क्वेरी हो गया। वहाँ पर क्या होगा, इंसर्ट के टाइम पे एसक्यूएल कोलन अपडेट होगा, और वो पैरामीटराइज्ड भी है ना। तो ये क्वेरी हो गई, करेक्ट, और पैरामीटराइज्ड क्वेरी है। तो देखो उसके लिए कैसे करते हैं। तो एसक्यूएल कोलन अपडेट डेटा सोर्सेज कनेक्शन, वेरिएबल इज एन, एन क्यों है वेरिएबल, वेरिएबल एन क्यों है, एन, एन मतलब क्या, एक एक चीज लेते आते हैं। एन मतलब कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए ना, और ये क्लोजिंग भी करना पड़ेगा, तो जो ओपन किया है उसको क्लोज करना पड़ेगा, ओके। और डेटाबेस का नाम कनेक्शन है, सही है। अब क्वेरी क्या है आपकी, क्वेरी क्या है, इंसर्ट टू ईएमपी वैल्यूज क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अब कितने पैरामीटर्स है ये, 3 पैरामीटर्स है, ठीक है। तो उसके लिए लगेगा एसक्यूएल पैरम, क्या लगेगा उसका, एसक्यूएल पैरम लगेगा। तो क्या करेंगे इसके अंदर ही, ठीक है, एसक्यूएल पैरम, वैल्यू कहाँ से आ रहा है उसका, पहले का ए से, दूसरे का बी से, और तीसरे का कहाँ से, ठीक है। फिर आपने अब वो क्वेरी एग्जीक्यूट कर देगा, फिर आपको चेक करना है कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं, फिर आप इफ लगा सकते हो, ये अपने आप कर देगा एग्जीक्यूट क्वेरी को। और वेरिएबल किस में आ जाएगा, एन में, तो ये सब निकल गया अभी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और अभी ये इफ की जगह पे क्या है हमारे पास, ये सी आउट कर दे। तो इफ टेस्ट कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है क्या, अगर एन क्या है, ओके, ये एरर क्यों दिखा रहा है, कि अपने कोर टैग भी इंक्लूड नहीं किया ना, आपने सिर्फ क्या टैगलिब को ऐड किया है एसक्यूएल वाला, और हम कौन सा टैगलिब कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कोर वाला, तो वो भी ऐड कर दो। तो कोर टैग का ये है ना, आप गूगल करोगे आपको मिल जाता है ये सब चीज़ें ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बोल दोगे ना JSTL कोर टैग, JSTL कोर टैग लाइब्रेरी, तो आपको वो दे देगा, एनी साइट विल गिव यू, और आजकल दे देगा आपको, ट्यूटोरियल पॉइंट भी दे देगा।
तो यहाँ से आपको इंपोर्ट करना है कोड को। यहाँ से आपको कोड को ये जो भी मिल जाए यहाँ से कोड को इंपोर्ट करें, कॉपी ऐसा डाल दो कोड को, न्यू सेम एम्प्लॉय वाले में मैंने इसका तो ऐड कर दिया था एसक्यूएल का, कोड का ऐड करते ही उसका एरर निकल जाना चाहिए। तो क्या टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं, एन ग्रेटर देन 0, फिर क्या काम करना है, तो फिर ये काम करना है ना। ओके, पर ये भी इसके पास भी है, ये है ना रिक्वेस्ट डिस्पैचर का भी इसके पास है ना, याद है कोर टैग में था, कोर टैग में था ना ये रिडायरेक्ट। क्या होगा ये, सी को रिडायरेक्ट कर दो इस यूआरएल, सब कुछ सही हो तो। अच्छा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर के लिए क्या इसके पास, अब ये वाला कोड अगर यहाँ डालेंगे तो ये तो जावा का कोड हो जाएगा। और उसका एल्स भी है इसके अंदर, इफ भी है और एल्स भी है। I'm just showing you all the syntax and keeping so that otherwise so ये आउट डॉट प्रिंट एलएन तो नहीं है, इधर आउट डॉट प्रिंट एलएन का क्या हाल है, व्हाट इज आउट डॉट प्रिंट एलएन ओवर हियर, लाइक पता ना वो। Unable to add student, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का सिंटैक्स देखना पड़ेगा, फिर ये सब सारा निकाल देते हैं, स्क्रिप्टेड की जरूरत ही नहीं। Okay, so let's try to take this code and then go here. Let's try to take this code and check whether it is syntactically correct. Syntax के लिए ChatGPT देखने को सिंटैक्स के लिए सिंटैक्स बराबर है। देखो ये ऐसे बोल रहा है, एसक्यूएल और सी को इंपोर्ट कर लिया, ये ले लिया वैल्यूज, कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया, पैरामीटर सेट कर दिया, टेस्ट कर दिया। ओके, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो रीडायरेक्ट यूआरएल, और वापस चेक किया इफ टेस्ट
इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो अनेबल टू ऐड स्टूडेंट और वापस रिडायरेक्ट कर दिया इसमें। तो आप सी का रिडायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, रिडायरेक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। कौन सा ये भेजना कहाँ है उसको, ऑल स्टूडेंट डॉट जे एस पी, सही आ गया। और यही चीज़ इसमें एल्स वाला मॉड्यूल नहीं है, एल्स वाला मॉड्यूल नहीं है इसमें। तो अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है तो करना पड़ेगा। क्लोजिंग में फिर जो क्लोजिंग ऑर्डर पर डिलीट कर दिया और का रिडायरेक्ट कर दो इसको, ऐड स्टूडेंट डिग डॉट जे एस पी। देखो ये ऐसा हो गया। So when I call the save student, when I will click on this button over here, when I will click on this button add student, ये all students के ऊपर एक बटन है add student, तो न्यू ऑल स्टूडेंट्स पे गया, उधर ऊपर एक बटन लगाया है ऐड स्टूडेंट, वो कहाँ जाएगा, ऐड स्टूडेंट डॉट जे एस पी। तो इधर गया ऐड स्टूडेंट डॉट जे एस पी, वो तीन चीज़ें लेगा, T1 T2 T3, नंबर नेम और सैलरी, जो कहाँ भेज देगा, सेव एम्प्लॉय। ओके, ये चेंज करना पड़ेगा ना, तो कहाँ भेजेगा अभी वो, न्यू सेव एम्प्लॉय पे, कहाँ भेज देगा, न्यू सेव एम्प्लॉय डॉट जे एस पी पे, ठीक है। तो फिर हम कहाँ आएंगे, न्यू सेव एम्प्लॉय डॉट जी एस पी पर। तो अब वो तीनों पैरामीटर रीड कर लिए, ठीक है। डेटा कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो गया, क्वेरी बना दिए, क्वेरी क्योंकि डीएमएल है इसके लिए, एसक्यूएल अपडेट डेटा सोर्स कहाँ से आ रहा है, डेटा सोर्स ये वेरिएबल है, और ये एन क्या है, जब एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो एलएचएस में क्या आएगा, वो एन में आएगा। क्वेरी क्या होगा, इंसर्ट टू ईएमपी वैल्यू 3 क्वेश्चन मार्क है, दोनों के पैरामीटर सेट कर दिए, वैल्यू सेट कर दी यहाँ से ए और बी और सी से, क्वेरी अपना हो जाएगी एग्जीक्यूट। और फिर हम लोग चेक करेंगे कि अगर एन में तो मोर देन 0 है तो यहाँ भेज दो, और अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो लिखो अनेबल टू ऐड स्टूडेंट, वापस कहाँ भेज दो, ऐड स्टूडेंट के ऊपर। लेट्स चेक दिस आउट नाउ। तो अगेन आई गो टू द ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट कहाँ है, न्यू ऑल स्टूडेंट, तो एक ही स्टूडेंट है 9 मनोज, 8 ले लिया, ऐड पे क्लिक किया, ओके 7 धोनी 800, सेव पे क्लिक करते हैं, और फिर वो क्या बोल रहा है, ये ऑल स्टूडेंट डॉट जे एस पी नॉट फाउंड, ओके कर आउट करेगा आपस को, ऑल स्टूडेंट नहीं रहा ना, अभी क्या बचा, न्यू ऑल स्टूडेंट बचा है ना, वो इशू कर रहा है, ठीक, सेव हो गया। वापस आते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, अभी क्या हो रहा है, सेव ऑलरेडी है ना, प्राइमरी की ऑलरेडी डुप्लीकेट होता ना, 8, ठीक है, 7 वाला धोनी भी है और 8 वाला धोनी भी है, 8 वाला धोनी को डिलीट कर दो। अब क्या बोल रहा है वापस से, ऑल स्टूडेंट्स, अगर डिलीट के बाद भी कहा जा रहा है, डिलीट के बाद भी कहा जा रहा है वो, तो क्या कर दो उसको, ठीक है। अब डिलीट को भी अगर करना है तो कैसे करेंगे बोलो, तुम लोग मुझे गाइड करो डिलीट के लिए। तो इसको हम कर देंगे ओल्ड डिलीट, क्या कर देंगे, रीनेम कर देंगे, क्या नाम से, ओल्ड डिलीट स्टूडेंट। तो ओल्ड डिलीट स्टूडेंट को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे और क्या बोलेंगे,
न्यू डिलीट स्टूडेंट डॉट जे, ठीक है। तो जब न्यू ऑल स्टूडेंट्स पे जब क्लिक करेंगे डिलीट पे तो कहाँ जाएगा वो, न्यू डिलीट स्टूडेंट, ठीक है। न्यू डिलीट स्टूडेंट पे जाएगा और रोल नंबर तो आ जाएगा, इधर आ जाएगा। न्यू डिलीट स्टूडेंट पे आ गए, ये तो रीड कर लिया हमने। अब यहाँ से मुझे बोलो, चलो यहाँ से पूरा बोलो, बोलो पट पट पट। पहले तो दोनों को ले लेंगे टैग लाइब्रेरी, ठीक है। और दिस शुड बी वेरी स्मूथ नाउ, ये बहुत स्मूथ चलना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। अपने को ये डेटाबेस की ज़रूरत भी नहीं है अभी, ना एसक्यूएल की ज़रूरत है ना इसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। अननेसेसरी स्लो डाउन करने की ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन को, तो यहाँ से भी निकाल दो, क्योंकि जब एक्स्ट्रा फाइल अपन जब कनेक्ट करते हैं ना तो ये बाइंडिंग में स्लो हो जाता है सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी कुछ भी ज़रूरत नहीं। तो अभी आ गया मैं न्यू डिलीट स्टूडेंट पे आ गया, बूम क्यों मार रहा है ये, टैग लाइब्रेरी आ गया, हेड आ गया, बॉडी बॉडी, ओके। ये इधर ओपन किया, इसको क्लोज नहीं किया इसके लिए, ठीक है। दोनों को इंपोर्ट कर लिया, अब बोलो क्या करना है, कनेक्शन वो कैसे करेंगे, ऐसा करें, ठीक है। हो गया कनेक्शन इस्टेब्लिश। अब एसक्यूएल क्वेरी क्या, एसक्यूएल अपडेट, एसक्यूएल अपडेट कोलन देते ही आपको बता देगा वो, ठीक है। एसक्यूएल अपडेट क्या करना है, एसक्यूएल अपडेट में कितने रिकॉर्ड डिलीट करेगा वो और कौन सा डेटा सोर्स यूज़ करेगा, तो वो बता देगा कि भाई डेटा सोर्स जो यूज़ करेगा वो, और जब एग्जीक्यूट अपडेट होगा तो जो LHS पे है उसका नाम क्या, वेरिएबल का, आपको जो नाम रखना है रख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे भी रखना है कि कितने रो डिलीट हो गए, तो मैं क्या बोलूँगा, रो, ठीक है। आपका करना है क्वेरी यहाँ प्रोवाइड करनी है, क्वेरी क्या है, ऑल डिलीट से ले लो, ये क्वेरी हो गई, न्यू डिलीट स्टूडेंट, कितने पैरामीटर्स पास करने हैं, तो वो पैरम वाला ले लो, एसक्यूएल पैरम, तो कितने हैं वेरिएबल, एक ही है ना, ठीक है। तो एग्जीक्यूट हो गया, कौन से वेरिएबल में आ गया, कितने रोज में। अब किससे चेक करेंगे अपन, किसे चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे ना, तो दो बार एक लगा दो, इसमें एल्स वाला पार्ट नहीं है, इसमें एल्स वाला पार्ट नहीं है। तो अगर क्या बोलेंगे, वेरिएबल का नाम दिया अपन ने, रोज है, तो कहाँ आउट कर दो, ऑल न्यू स्टूडेंट्स पे, और अगर नहीं है तो क्या बोलो, अनएबल टू डिलीट स्टूडेंट, ठीक है। और वापस फाइंड आउट, आउट वहीं कर दो, वापस आउट वापस वहीं कर दो, सही है, कोई शक, समझ में आ रहा है कि JSPL का काम दो तीन बार एक बार हैंड ऑन हो गया तो फिर वो प्रैक्टिस पे आ जाते हैं, ठीक है। सेव कर देते हैं इसको, कंसोल को क्लियर कर देते हैं। अब न्यू ऑल स्टूडेंट्स को वापस रन करते हैं, रन एज रन ऑन सर्वर,
ओके, पहले ऐड कर लेते स्टूडेंट को। 18 विराट 1100 सेव किया, यार आउट हो गया। मनोज को डिलीट कर देते, क्लिक ऑन डिलीट। कोई शक? समझ में आ गया JSPL? तो आपको स्क्रिप्टलेट पे डिपेंडेंट होना की ज़रूरत नहीं रहती, क्या बचा लेते। इसको अभी डाल के चैट जीपीटी को पूछते इसको और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है क्या। तो मैं सिंटैक्स के लिए जाता हूँ चैट जीपीटी के पास अक्सर, तो सिंटैक्स में कुछ हेल्प चाहिए होता है ना, तब लॉजिक के लिए ज़्यादा नहीं आता हूँ मैं। देखते हैं अभी कुछ बोलता है कि इम्प्रूवमेंट और कुछ कर सकते हैं क्या। तो क्या बोल रहा है ये, सोच रहा है ये। वी आर स्टिल यूजिंग लिटिल बिट ऑफ स्क्रिप्टलेट ओवर हियर, राइट। देखो अभी भी स्क्रिप्टलेट का एक टास्क तो है ना। अपन ने कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया स्क्रिप्टलेट को। तो मैं ये सोच रहा था और पूछ रहा था चैट जीपीटी को कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव, इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव फॉर दिस इन JSPL। तो उसने क्या बोला कि हाँ है ना, एक सी का सेट है, सेट। क्या ऐसे बोला, आप सिर्फ पैरम का नाम दे दो, क्या दे दो, पैरम आता ना इनपुट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, तो क्या दे दो, पैरम, और पैरम का नाम क्या, ई नंबर। बट बाय डिफॉल्ट जो भी आता है वो स्ट्रिंग में आता है, किस में आता है, फिर अपने को उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो FN करके फंक्शन भी उसका एक वो है, एक लाइब्रेरी है किसका, फंक्शन। अगर आपको यूज करने तो पार्स क्या है, फंक्शन है, तो फंक्शन की लाइब्रेरी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो फिर वो क्या बोल रहा है, ऐसा कर लो आप, पैरम डॉट ई नंबर मिल गया आपको, उसको डाल दिया आपने ई नंबर के अंदर, और ई नंबर को किस में कन्वर्ट कर लिया, इंटीजर में डाल दिया, किसके अंदर, ए में। और आप ए को सेट करो आपका वैल्यू। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि हम कंप्लीटली एलिमिनेट कर दें स्क्रिप्टलेट्स को। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से उठा दिया, न्यू वाले में ये डाल दिया। अभी फंक्शन में इशू क्यों कर रहा है, तो फंक्शन को अपन ने इंपोर्ट नहीं किया है, तो यहाँ से उसको इंपोर्ट कर लेते, फिर फंक्शन वाले टैग लिख को। समझ में आया तुमको टैग लिख अब अच्छे से, JSPL के खुद के टैग लाइब्रेरीज है, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सेव कर दो। क्या बोल रहा है ये, multiple annotation on this line, see set where a value equals। सेट को पहले क्लोज करना पड़ता है क्या, ओके, सेट को पहले क्लोज करना पड़ता है, हाँ, तो फुल क्लोज क्या, सेल्फ क्लोजिंग है ना वो। सी सेट वेरिएबल ई नंबर, पैरम डॉट ई नंबर जो भी आएगा, और फिर उसको डाल दिया ए में। सब कुछ इशू, सब कुछ सही है, फिर भी अगर इशू कर रहा है तो क्लीन कर लो प्रोजेक्ट को एक बार। स्टॉप कर लो एप्लीकेशन को एक बार, कंसोल क्लियर कर लो। ओके, यहाँ पर भी अभी वो क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी एक्सप्रेशन आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी क्या कर दो, SQL पैरम डायरेक्ट वैल्यू इक्वल टू $a कर दो, क्या कर दो, ठीक है, SQL पैरम value equal to $. Okay, so now we have completely eliminated this, but why this FN prefix FN तो कर दिया हमने, is undefined,
अनडिफाइंड क्यों आ रहा है भाई? Okay, make sure the function has been added, right? This is a cleaner approach. So let's try to check it if it is working. So new all students ले लिया, right click run as, run on server कर दिया. Okay, now I click on Dhoni, delete. Okay, क्या बोल रहा है? parse cannot be located. parse नहीं मिल रहा है. fn से लिखता है function. तो ये अभी चैट जीपीटी को पूछते हैं कि भाई क्या इशू है, फंक्शन क्यों नहीं मिल रहा. चलो इसमें ऐड होगा नहीं. The function parse cannot be located in a specified place. चलिए वर्जन का इशू होगा. तो सी और वो ले लिया. तो आप बोल रहे हैं इंटीजर डॉट पास इंट यूज कर लो. क्या बोल रहा है वो? इंटीजर डॉट पास इंट यूज कर लो. अगर पास इंट नहीं चल रहा है तो क्या कर लो आप? ये पैरामीटर एक अपने सी से किया है ना, एक अपने सी से फिर से आ गया, स्क्रिप्ट टैग आ गया इधर. तो वापस डायरेक्टली टू इंटीजर डॉट पास इंट. फंक्शन वाला जो JSPL है उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. JSPL फंक्शन टैग उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. फंक्शन देखो क्या कंटेन्स है, कंटेन्स इग्नोर है. तो जितने भी है ना ये फंक्शन से आप यूज कर सकते हैं. और पार्स इंट भी तो चाहिए ना अपने को. इसके लिए फिर ऑप्शन नहीं है तो वो यूज कर लो, पुराना यूज कर लो. बट पैरम भी हम लोग रीड कर सकते थे. पैरम सेट भी कर सकते डायरेक्टली है. ये ठीक. ओके हम लोग है ना एक वो बना सकते हैं एरर पेज भी. अगर कोई एरर आता है, लेट्स से अभी यहाँ पर सेव स्टूडेंट में अगर कोई एरर आ जाए तो हम लोग कौन से फाइल पे जाएंगे? वो हमारी एरर फाइल होगी. क्या होगी? तो हम यहाँ पर वो बता सकते हैं कि इसका एरर पेज क्या होगा. ठीक है. अगर कोई एरर आ जाए इसके अंदर तो इसका @पेज एरर पेज कौन सा होगा? तो ये एक और फीचर तुमको बताता हूँ मैं JSP का. अगर इस फाइल में कोई एरर आ जाए सेव करते वक्त तो @पेज एरर पेज भी उसका एक एट्रीब्यूट है. तो उसको कहाँ भेज देंगे हम लोग? एरर पेज डॉट, ये अपने खुद की एरर पेज है. ठीक है, ये माई एरर पेज अपन ये बनाना पड़ेगा अपने को. तो वेब ऐप में जाके राइट क्लिक और न्यू और एक JSP फाइल बना देंगे. ओके.
माई एरर पेज डॉट JSP आ गया। अब ये कैसे बनती है, तो इसको पहले बोलना पड़ेगा कि ये हमारी एरर पेज है। ठीक है, तो जो एरर पेज होती है ना, उसको हम बोलना पड़ता है इज दिस एरर पेज, उसको ट्रू करना पड़ता है। एट द रेट पेज इज एरर पेज भी है, तो जो हमारी यहाँ पर एरर्स लॉग होंगे तो उसको बोलना पड़ता है कि ये हमारी एरर पेज है, ट्रू। और फिर जब भी कोई एक्सेप्शन आएगा तो ये वाली फाइल कॉल हो जाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, फिर बॉडी में जब भी कोई एक्सेप्शन आएगा तो ये वाला पेज कॉल हो जाएगा। ओके, और जो भी एक्सेप्शन आएगा उसका मैसेज यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने किस पे ऐड कर दिया है, न्यू सेम एम्प्लॉय पे, मेरा एरर पेज। ठीक है, अब जब इसको हम रन करेंगे, देखते हैं न्यू ऑल, स्टूडेंट एम्प्लॉय में पूरा फाइल के नाम। ठीक है, तो अभी एक स्टूडेंट ऑलरेडी है, किस किस नाम से एम्प्लॉय है, किस 18 नाम से ऑलरेडी एम्प्लॉय है ना। फिर से अगर मैं ऐड करूँ 18 नाम, तो होगा क्या ऐड, एक एरर आएगा। ठीक है, और वो उस एरर पे डाल देगा, इस फाइल को भेज देगा कि एरर अकर्ड, और वो मैसेज क्या था कि यू आर ट्राइंग टू एंटर डुप्लीकेट 18। तो हम हमारे सारे एरर्स को एक जगह फाइल में, कोई भी इशू आया तो फाइल को राउट कर सकते हैं। ठीक है, 19 डाला तो सेव हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ओके, इतना JSP आया, बहुत है तुम लोग, मोर देन सफिशिएंट।